Hey, lovely people out there, welcome to my YouTube channel and thanks for clicking on this video. आज का वीडियो प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है because in our today's video presentation we are going to understand the concept which is related to the female reproductive system, and that concept is known as the concept of menstrual cycle. So before starting our today's video presentation, let me give you a brief review कि आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में हम कौन सी चीजें डिस्कस करने वाले हैं. So in our today's video presentation, we will be understanding the concept of menstrual cycle. अब ये जो menstrual cycle होती है, क्या ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कनेक्टेड है क्या? यस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. देन ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, इट इज अगेन क्लासिफाइड इनटू फोर इंपॉर्टेंट फेजेस. अब हर एक फेजेस में उसकी एक स्पेशलिटी है, and हर एक phases में there are some events taking place. So we are going to understand कि what are the different events, and क्या ये events को guide करने के लिए क्या कोई chemical messenger की जरूरत होती है क्या? Yes. And my dear friend, जो chemical messenger हमारे human body में पाए जाते हैं, they are known as hormones. And last में I will tell you a very important graphical representation of all the events that is taking place in all the different phases of a menstrual cycle, along with the concentration of different hormones. So without wasting any further time, let us get started with the basic concept of a menstrual cycle. अब सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सर, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ये किस में होती है? सो माय डियर फ्रेंड, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्राइमेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन. सो क्या सर प्राइमेट्स में और भी कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं क्या? यस. सो प्राइमेट्स में हमारे मंकीज आ जाते हैं, एप्स आ जाते हैं, एक्सेट्रा. सो उसमें ये जो प्राइमेट्स की जो फीमेल होती है, उसमें ये साइकिल पाई जाती है, एंड दैट पर्टिकुलर साइकिल इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो क्या सर कोई नॉन प्राइमेट फीमेल अगर होगी, क्या उनमें भी कोई साइकिल चलती होगी क्या? यस, उनमें भी एक साइकिल चलती है, but that cycle is not called as the menstrual cycle. That cycle which is taking place in the non-primates, that is known as estrous cycle. So ये जो particular menstrual cycle होती है, ये कब start होती है? So it starts at the time of puberty, एंड जब एक फीमेल को फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, दैट पर्टिकुलर फेज इज नोन एज मेनार्क. सो द फर्स्ट menstrual bleeding, or we can say the first menstrual cycle, when the female is attaining the reproductive age, that we call it as a puberty. So puberty में जो पहला menstrual cycle होता है, that is known as a menarche. अब ये menstrual cycle का सर ड्यूरेशन क्या होता है? So on an average, a one cycle in a female, it lasts for about 28 days. सर क्या ये पर्टिकुलर डेज फिक्स होते हैं क्या? The answer is no. कुछ फीमेल्स में ये जो साइकिल है, इट टेक्स लेस देन 28 डेज, एंड कुछ फीमेल में 28 डेज से ज्यादा भी होते हैं.
बट फॉर आर बेटर अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ पे ये जो साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो ऑन एन एवरेज कितना लेकर चल रहे हैं, दैट इज फॉर 28 days. So the menstrual cycle, it consists of a series of changes which are taking place on two important simultaneous structures. The very first structure जहाँ पे changes देखने के लिए मिलते हैं, that is known as the female ovaries. And second structure जहाँ पे changes देखने के लिए मिलते हैं, that is known as the female uterine wall. अब यूटराइन वॉल में भी अलग अलग लेयर्स होते हैं, तो सर यूटराइन वॉल में कौन से लेयर में हमको चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं? द आंसर इज ऑन द एंडोमेट्रियम. So let us understand first the basic concept of the female reproductive system. So as you all can see on your screen, here is the basic diagrammatic representation of the female reproductive system. On the left hand side, यहाँ पे हमें कौन सा स्ट्रक्चर देखना है? That is the uterus. अब यूटरस में there are three important layers. सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है that is known as perimetrium. यूटरस की जो मिडल लेयर होती है दैट इज नोन एज मायोमेट्रियम. एंड सबसे इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूटरस होती है दैट इज नोन एज एंडोमेट्रियम. सो ड्यूरिंग द फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन से स्ट्रक्चर में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं? दैट इज इन द एंडोमेट्रियम, that is the innermost layer of the uterus, उसमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं. अभी आते हैं हमारे सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट पे. सर क्या ओवरीज में भी कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं क्या? यस. सो ऑन योर राइट हैंड साइड हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल ओवरीज. अब ये जो फीमेल ओवरीज होती है ये क्या रिलीज करती है? इट रिलीजेस अ फीमेल गैमेट जिसे हम ओवा या फिर एग बोलते हैं. अब ये जो ओवा एंड एग है क्या ऐसे ही वो रिलीज हो जाएगा क्या? द आंसर इज नो. सो इनसाइड द ओवरीज देयर आर मेनी स्मॉल स्मॉल फॉलिकल्स जिसे हम कहते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल. अब ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है it is growing and it is getting transformed into the next bigger structure that is known as the primary follicle. अब प्राइमरी फॉलिकल भी आगे चल के मैच्योर होंगे into the secondary follicle. Secondary follicle it will further get mature into the tertiary follicle. And finally it results into formation of a mature follicle. And इस mature follicle को हमने नाम दिया है ग्राफियन follicle. क्या नाम दिया है? ग्राफियन follicle. Now just take a look on the mature follicle. Mature follicle में क्या आपको ये सेंटर पे एक कुछ येलो जैसा एक डॉट जैसा कोई स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है क्या? यस. सो जब ये पर्टिकुलर मैच्योर फॉलिकल विच इज ऑल्सो नोन एज द ग्राफियन फॉलिकल जब ये टूट जाएगा इसके अंदर से इट विल रिलीज अ फीमेल गैमेट. यस और नो? सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट रीजन्स में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं. द वेरी फर्स्ट वन is the female ovaries and the second one is the endometrium which is the innermost layer of the uterine wall. Now ये जो menstrual cycle होता है अभी हमने देखा कि दो जगह पे changes देखने के लिए मिलेंगे. The very first one changes in the ovary and the second the changes in the endometrium.
सर क्या ये चेंजेस एक के बाद एक होते हैं? नहीं, ये जो चेंजेस है साइमल्टेनियसली देयर आर चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द ओवरी एंड उसी समय पे चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द एंडोमेट्रियम। चलो सर ये तो समझ में आ गया, बट ये चेंजेस लाता कौन है? सो ये चेंजेस लाने वाले जो हॉर्मोन्स होते हैं विच आर द केमिकल मैसेंजर्स, वो दो जगह पे इंपॉर्टेंट होते हैं। सो हॉर्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करेंगे एंड अवर ओवेरियन हॉर्मोन्स दे विल हेल्प इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सर एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन से हॉर्मोन्स हेल्प करेंगे? So there are two important hormones. The very first one is known as FSH, जिसे हम कहते हैं follicle stimulating hormone, and the second hormone is the LH, जिसे हम कहते हैं luteinizing hormone. सर ओवेरियन हॉर्मोन्स कौन से हैं? So there are two important ovarian hormone. The very first one is known as estrogen, and the second one is known as progesterone. So let us get started with the very first phase of the female menstrual cycle, and that particular first phase is known as menstrual phase. अब ये जो menstrual phase होता है, it is also known as the bleeding phase of the menstrual cycle. अब ये जो bleeding है, that is marked as the first day of the menstrual cycle. So जैसे ही किसी फीमेल में ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग जिस दिन स्टार्ट होगी, that my dear friend is considered as the first day of the menstrual cycle. अब ये जो menstrual का फेज है, सर ये कितने दिनों तक एक्सटेंड करता है? So this phase approximately it extends from first day to fourth day of the female. So हम एवरेज एक ड्यूरेशन लेके चल सकते हैं कि 3 to 5 days there will be bleeding phase, और we can say 3 से 5 दिन तक कौन सा फेज चलेगा? मेंस्ट्रुअल फेज चलेगा। अब सर ये ब्लीडिंग क्यों हो रही है? ये ब्लीडिंग इसीलिए हो रही है बिकॉज जो एंडोमेट्रियम था फीमेल का, दैट इज गेटिंग ब्रेकिंग अप। सो एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक्स, एंड ये जो एंडोमेट्रियम होता है, इट इज मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स एंड ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल सेल्स। नाउ जस्ट थिंक लॉजिकली, अगर हमारा एंडोमेट्रियम इट इज मेड अप ऑफ द ब्लड वेसल, एंड अगर ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अगर टूट रही है, क्या ये ब्लड वेसल भी रप्चर करेंगे क्या? यस। एंड अगर ब्लड वेसल अगर रप्चर कर रहे हैं, टूट रहे हैं, नाम ही क्या है? ब्लड वेसल। सो देयर विल बी लॉस ऑफ ब्लड। So during the phase of the menstrual phase, bleeding phase में क्या होगा? Blood, ruptured blood vessel, mucus comes out of the female body through the vagina. So यहाँ पे menstrual phase में क्या होगा? There will be shredding of the endometrium. सर ये endometrium टूट क्यों रहा है? इसका जवाब आपको एंड ऑफ वीडियो लेक्चर तक मिल जाएगा, बट फॉर नाउ जस्ट बिलीव मी, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगी देयर विल बी श्रेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, एंड जब एंडोमेट्रियम श्रेड आउट होना स्टार्ट होगा, देयर विल बी ब्लड कमिंग आउट, रप्चर्ड ब्लड वेसल, म्यूकस इट कम्स आउट ऑफ द फीमेल बॉडी थ्रू द वजाइना। अब बात आती है कि सेकेंड फेज में इट इज नोन एज
the follicular phase, or it is also known as the proliferative phase. अब यहाँ पे जब फेज 2 ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, अभी रोल आता है एंटीरियर पिट्यूटरी का। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी क्या भेजती है? इट स्टार्ट्स सिक्रेटिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, एंड दैट माय डियर फ्रेंड इज नोन एज फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। बट सर, ये फॉलिक्यूलर या फिर प्रोलिफरेटिव फेज का ड्यूरेशन क्या होता है? सो ये जो फॉलिक्यूलर फेज है, इट रफली लास्ट फॉर अबाउट 5 to 13th डे, एंड इसका जो ड्यूरेशन होता है, इट इज फॉर 8 to 9 डेज। अब एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन आ रहा है? दैट इज अवर एफएसएच। एफएसएच का फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। सो ये जो फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन होता है, इट विल गो टू द ओवरीज एंड इट विल ब्रिंग अबाउट द मैच्योरेशन ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स। अभी अगर मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स अगर ये एफएसएच करवा रहा है, इसीलिए हमने ये फेस को क्या नाम दिया है? दैट इज अ फॉलिक्यूलर फेस। सर, इसको प्रोलिफरेटिव फेस क्यों कहते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट। सो अभी ये जो एफएसएच है, दैट इज एक्टिंग ऑन दी फॉलिकल्स। अब धीरे धीरे ये फॉलिकल्स मैच्योर यानी कि ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, एंड जैसे ही ये फॉलिकल्स ग्रो करते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स have a very important cells, and those cells are known as the granulosa cells. सर, क्या ये ग्रेन्युलोसा सेल्स कुछ सीक्रेट करते हैं क्या? यस, एंड दिस पर्टिकुलर granulosa cells of the ovarian follicle, it will secrete a very important ovarian hormone, and that, my dear friend, is known as estrogen. सर, ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है? सबसे पहले ब्लीडिंग फेज में हमने किससे स्टार्ट किया था? श्रेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम से स्टार्ट किया था। इन शॉर्ट, क्या एंडोमेट्रियम ब्रेक हो चुका है क्या? यस। एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग ब्रेक हो चुकी है, वापस से उसको रीजनरेट करने का काम कौन करवा रहा है? That is the female ovarian hormone, and that, my dear friend, is known as estrogen. Estrogen में हमने क्या लिखा? It regenerates the broken endometrium. Now just think कि अगर एंडोमेट्रियम को रीजनरेट करवाने का काम अगर हम कर रहे हैं, क्या इसको हम प्लॉरिफरेटिव फेज भी बोल सकते हैं क्या? यस। फॉलिकुलर फेज हमने क्यों बोला? बिकॉज जो ओवरीज में जो फॉलिकल्स प्रेजेंट है, उसको अगर हम मैच्योर करवाते हैं, देन इट इज नोन एज द फॉलिकुलर फेज। एंड प्रोलिफरेटिव फेज क्यों बोला? बिकॉज फेज 1 यानी कि ब्लीडिंग फेज में जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्रेक हो चुकी थी, वापस से उसको ग्रो करना है, वापस से उसको प्लॉरिफरेट करवाना है, इसीलिए इस फेज का हमने नाम सेकंड नाम क्या रखा? दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज। नाउ ये जो ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन is sending a positive feedback to the anterior pituitary. Now, what is the concept of positive feedback? पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये होता है, जब एक सब्सटेंस की लेवल इंक्रीज हो रही है एंड साइमल्टेनियसली दूसरे सब्सटेंसेस की भी लेवल अगर इंक्रीज हो रही है, देन दैट, माय डियर फ्रेंड, इज नोन एज पॉजिटिव फीडबैक। यहाँ पे किसका लेवल बढ़ रहा है? मैंने कहा सर, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। क्यों ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है? क्योंकि
ये जो फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन है, इट इज एक्टिंग ऑन द ओवेरियन फॉलिकल, एंड ओवेरियन फॉलिकल्स यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, एंड ओवेरियन फॉलिकल्स क्या सिक्रेट कर रहे हैं? दैट इज ईस्ट्रोजन। सो जैसे ही ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, this increase in the estrogen level, it is sending a positive feedback to our anterior pituitary कि hey anterior pituitary, increase the release of follicle stimulating hormone and the luteinizing hormone. So estrogen जब अकेला प्रेजेंट होगा, क्या करेगा? It will send a positive feedback to our anterior pituitary, एंड जैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी को एक पॉजिटिव मैसेज जाता है, किसका लेवल इंक्रीज होगा? फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज होगा, एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज होगा। अब धीरे धीरे क्या ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा क्या? यस। सो एट द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, LH is at its maximum peak, एंड जब LH अपने चरम सीमा पे होते हैं, that LH is known as LH surge। अब जब LH सर्ज होता है, हमने क्या पढ़ा था कि ये जो फॉलिकल्स है, फाइनली इट विल डेवलप इनटू अ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल, एंड दैट मैच्योर फॉलिकल इज नोन एज ग्राफियन फॉलिकल। अब ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या फीमेल गैमीट प्रेजेंट है क्या? यस। सो क्या इस ग्राफियन फॉलिकल को हमें तोड़ना पड़ेगा क्या? तभी तो जो फीमेल गैमेट है, एग है, वो रिलीज होगा। यस। सो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर LH सर्ज एट द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, it gets ruptured. So ruptured graphian follicle, then it will release the ovum, and this particular phase is known as the ovulatory phase। अब मुझे एक बात बताओ कि let us understand this particular concept with the help of a graph। So यहाँ पे this is considered as the 0 day of the menstrual cycle। 0 डे पे क्या हुआ? यहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, एंड ब्लीडिंग जब स्टार्ट होगी तो क्या होगा? जो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है, दैट विल गेट श्रेडेड अवे। सो एंडोमेट्रियम यहाँ पे क्या हो रहा है? श्रेड आउट हो रहा है, टूट रहा है। उसी टाइम पे हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या सिक्रीट करना चालू किया? दैट इज फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। सो धीरे धीरे यहाँ पे ये जो ग्रोइंग फॉलिकल्स है, वो मैच्योर होना स्टार्ट हुए, एंड मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल्स वो क्या सिक्रीट करेंगे? इट विल स्टार्ट सिक्रेटिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, एंड दैट हार्मोन इज नोन एज द ईस्ट्रोजन। सो यहाँ पे देयर विल बी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। जैसे ही ईस्ट्रोजन इंक्रीज हुआ, ईस्ट्रोजन ने क्या भेजा? पॉजिटिव फीडबैक के FSH एंड LH का लेवल प्लीज एंटीरियर पिट्यूटरी बढ़ा दो। तो पिट्यूटरी ने क्या किया? ऑर्डर को फॉलो किया, एंड LH के लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। सो ऑन दी 14th डे क्या हो रहा है? LH अपने चरम सीमा पे है, एंड जब LH अपने चरम सीमा पे होंगे, इट विल ब्रेक द ग्राफियन फॉलिकल, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो व्हेन द ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स, जब ये टूट जाता है, इट विल रिलीज अ एग इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बात आती है कि सर ड्यूरिंग द फेज ऑफ फॉलिक्यूलर फेज, यहाँ पे क्या हो रहा था? ये जो ईस्ट्रोजन है, क्या वो एंडोमेट्रियम को रीजनरेट वापस से बनाने का काम कर रहा था क्या? यस। सो लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल।
अब हम आ जाते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट फेज पे, एंड दैट फोर्थ फेज इज नोन एज लुटियल फेज, और इट इज ऑल्सो नोन एज सिक्रेटरी फेज। अब मुझे एक बात बताओ कि फेज थ्री में क्या हुआ था। फेज थ्री मतलब हमारा ओव्यूलेशन का फेज, जहां पे ये ग्राफियन फॉलिकल है वो टूट चुका था। अब ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है, इट फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट येलो कलर्ड बॉडी, एंड दिस येलो कलर्ड बॉडी इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। इसीलिए क्या ये फेज का नाम हमने ल्यूटियल फेज ऐसा रखा है क्या? यस सर। सिक्रीटरी फेज क्यों रखा है? बिकॉज ये जो कॉर्पस लूटियम है, क्या सर ये कुछ हार्मोन रिलीज करेंगे क्या? यस सर। ये कौन से हार्मोन रिलीज करेंगे? सो दिस कॉर्पस लूटियम मेजरली इट विल सिक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, एंड थोड़े अमाउंट में इट विल सिक्रेट द हार्मोन दैट इज ईस्ट्रोजन। सर ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? पहले ईस्ट्रोजन ने क्या किया था? पहले ईस्ट्रोजन ने ये एंडोमेट्रियम जो फर्स्ट फेज में ब्रेकडाउन हो गई थी उसको वापस बनाने का काम करना स्टार्ट किया था। अब जब आफ्टर ओव्यूलेशन जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज होगा, तब ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये क्या करेगा? इट विल अगेन थिकन द एंडोमेट्रियम, और ज्यादा वो एंडोमेट्रियम को मोटा करने का काम करेगा। वहां पे और ज्यादा सिक्रीटरी सेल्स और वहां पे ब्लड वेसल्स लाएगा, सो दैट अगर बाय चांस अगर प्रेगनेंसी होती है, देन आफ्टर द फेज ऑफ फर्टिलाइजेशन जो भी इम्प्लांटेशन इस एंडोमेट्रियम पे होना चाहिए वो एकदम प्रॉपरली हो। सो प्रोजेस्टेरॉन का यहाँ पे काम क्या है? इट विल थिकन द एंडोमेट्रियम। अब यहाँ पे एक काम आता है, दैट इज के एलएच एंड कॉर्पस ल्यूटियम का रिलेशनशिप। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर नहीं होता, क्या कॉर्पस लूटियम आता क्या? नहीं। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर किसके वजह से हुआ? एलएच के वजह से हुआ। सो जब तक यहाँ पे एलएच रहेगा तब तक कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा। सो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? जब तक एलएच का लेवल हमारे फीमेल में रहेगा तब तक कौन जिंदा रहेगा? कॉर्पस ल्यूटियम जिंदा रहेगा। बट यहां पे आ जाता है कहानी में ट्विस्ट। कॉर्पस ल्यूटियम कौन से दो हॉर्मोन्स रिलीज कर रहा था? द वेरी फर्स्ट वन वाज अ प्रोजेस्टेरॉन, एंड थोड़े अमाउंट में ईस्ट्रोजन। अब जब ये प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन जब साथ में होते हैं, इट इज सेंडिंग अ नेगेटिव फीडबैक टू द एंटीरियर पिट्यूटरी। अब सर नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है? नेगेटिव फीडबैक का मतलब ये होता है जब एक पर्टिकुलर चीज का लेवल जब इंक्रीज हो रहा है, एंड उसके इंक्रीज के वजह से दूसरे हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो रहा है, दिस रिलेशन माय डियर फ्रेंड इज नोन एज नेगेटिव रिलेशन, और वी कैन से नेगेटिव फीडबैक। सो कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या सिक्रीट किया? प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। सो प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन का लेवल क्या इंक्रीज हो रहा है क्या? यस। एंड इसके इंक्रीज होने के वजह से ये नेगेटिव फीडबैक दे रहा है किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी दो इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स रिलीज करती है। कौन से? द वेरी फर्स्ट वन इज एफएसएच एंड द सेकंड वन इज एलएच। सो अगर प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, इट इज सेंडिंग अ नेगेटिव फीडबैक टू अवर एंटीरियर पिट्यूटरी। उसके वजह से क्या होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी will decrease the secretion of
FSH and LH. Now, why this particular level should decrease? Can we understand this particular concept with the help of the graphical representation? मुझे एक बात बताओ, FSH का काम क्या था? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम ये था कि फॉलिकल्स को मैच्योर करवाना, ग्रो करवाना। LH का काम क्या था? LH का काम ये था कि जो हमारा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है उसको ब्रेक डाउन करना। क्या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने ऑलरेडी फॉलिकल्स को डेवलप करके हो गया उसका काम? यस। क्या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपने चरम सीमा पे क्या ग्राफियन फॉलिकल को ऑलरेडी वो रप्चर कर गया है क्या? यस। सो अगर इन दोनों हार्मोन का काम हो गया है, क्या ये हार्मोन फीमेल की बॉडी में होने चाहिए क्या? द आंसर इज नो। सो इसमें क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन टुगेदर विल हैव अ नेगेटिव फीडबैक टू द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड उसके वजह से levels of FSH and LH will decrease. अब बात आती है कि अगर LH का लेवल अगर कम होता जाएगा, हमने अभी क्या पढ़ा? जब तक LH रहेगा तब तक कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा। सो अगर LH का लेवल अगर डिक्रीज होने लगा, क्या कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा क्या? यस। एंड अगर कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट अगर हो जाता है, then the next structure is known as the white colored body, and that, my dear friend, is known as corpus albicans. अब मुझे एक बात बताओ, कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर रहा था? Corpus luteum was secreting lots and lots of progesterone. Yes or no? Yes. Progesterone का काम क्या था? Very important. It will maintain and it will thicken the endometrium lining of the uterus. अब अगर LH का लेवल डिक्रीज होने लगा, कॉर्पस लूटियम भी डिजनरेट हो गया, तो क्या प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी डिक्रीज होना स्टार्ट होगा क्या? यस। एंड अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, देयर इज नो हार्मोन टू मेंटेन द यूटराइन एंडोमेट्रियम। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन? Progesterone has a very important function of thickening the endometrium, and second function क्या है? वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है, टूटने नहीं देता। सो अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ही अगर डिक्रीज हो जाए, क्या कोई हार्मोन है क्या मेंटेन करने के लिए यूटराइन एंडोमेट्रियम को? नहीं सर। सो अगर कोई हार्मोन है ही नहीं तो क्या होगा? ये जो एंडोमेट्रियम है दैट विल ब्रेक एंड वापस से ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी आपको क्या पता चल रहा है कि ब्लीडिंग क्यों स्टार्ट हुई है? ब्लीडिंग इसीलिए स्टार्ट हुई है बिकॉज द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज डिक्रीज्ड, and because of this decrease in the level of progesterone, कोई भी इसको मेंटेन करने के लिए नहीं है, इसीलिए जो एंडोमेट्रियम है दैट विल स्टार्ट श्रेडिंग, एंड उसके श्रेड होने से ही क्या स्टार्ट हो जाएगी फीमेल में? दैट इज ब्लीडिंग. So that is the start of the next menstrual cycle. Now let us understand whole concept with the help of the graphical representation. So यहाँ पे हमने ओव्यूलेशन तक देख लिया था। क्या देखा था? कि यहाँ पे एंडोमेट्रियम श्रेड हो रही है। क्यों श्रेड हो रही है? बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। सो जैसे ही ये लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन होगा, हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी कौन से दो हार्मोन को रिलीज करवाएगा? दैट इज देयर विल बी रिलीज ऑफ
फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन क्या करवाएगा? फॉलिकल्स की डेवलपमेंट। एंड ये जो ग्रोइंग फॉलिकल्स है, ये कौन सा हार्मोन सिक्रिएट करेंगे? ईस्ट्रोजन। सो यहाँ पे ईस्ट्रोजन का लेवल इट इज इंक्रीजिंग। यस, यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच एंड एलएच भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज ये जब ईस्ट्रोजन अकेला होता है, इट विल सेंड अ पॉजिटिव फीडबैक टू द एंटीरियर पिट्यूटरी के एंटीरियर पिट्यूटरी प्लीज इंक्रीज द लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच। सो 14th डे पे क्या होगा? एलएच अपने चरम सीमा पे है एंड ऑल्सो फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन इज एट पीक। बट यहाँ पे ओव्यूलेशन के लिए किसका सर्ज इंपॉर्टेंट है? दैट इज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यहाँ पे ईस्ट्रोजन ने क्या किया? यहाँ पे जो ब्लीडिंग फेज में एंडोमेट्रियम ब्रेक हो चुका था, उसको वापस से बनाने का काम किसने स्टार्ट कर दिया है? ईस्ट्रोजन ने। अब एलएच जब अपने चरम सीमा पे होंगे, यहाँ पे इट विल रप्चर द ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर विल बी द रिलीज ऑफ द फीमेल गैमेट। एंड इसी फेज को हमने क्या नाम दिया है? दैट इज ओव्यूलेशन। अब जैसे ही ओव्यूलेशन होगा, ये जो बाकी का स्ट्रक्चर है, दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ येलो कलर्ड बॉडी एंड दिस येलो कलर्ड बॉडी इज नोन एज कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम कौन से दो हार्मोन रिलीज कर सकता है? मेजर अमाउंट में इट इज रिलीजिंग प्रोजेस्टेरॉन एंड इन स्मॉलर अमाउंट इट इज रिलीजिंग ईस्ट्रोजन। सो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी बढ़ रहा है एंड ईस्ट्रोजन का भी लेवल बढ़ रहा है। अब प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन जब इंक्रीज होते हैं, क्या ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं क्या? यस। किसको नेगेटिव फीडबैक देंगे? हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को, कि प्लीज स्टॉप सिक्रेटिंग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। सो यहाँ पे यू कैन सी कि ल्यूटिनाइजिंग लेवल का जो लेवल है, दैट इज गेटिंग डिक्रीजिंग एंड फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन का जो लेवल है, वो भी कम होता जा रहा है। ऑन द अदर हैंड प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन इज इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो प्रोजेस्टेरॉन है, इट इज मेंटेनिंग द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। नाउ, क्या सर प्रेगनेंसी में भी क्या फर्टिलाइजेशन अगर होता है, क्या प्रेगनेंसी में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाई देती है क्या? द आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज यहां पे अगर फर्टिलाइजेशन अकर होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि जब ये फीमेल गैमेट फीमेल की बॉडी रिलीज करती है, उसी समय पे अगर स्पर्म आके इस पर्टिकुलर एग को अगर फ्यूज करता है, then it results into a formation of the zygote, and that, my dear friend, is known as the process of fertilization. अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देयर विल बी इम्प्लांटेशन। सर इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? इम्प्लांटेशन का मतलब है जो फ्यूजन के टाइम पे जो जाइगोट बनता है, दैट विल ग्रो एंड फाइनली इट विल गेट स्टक, इट विल गेट इम्प्लांटेड इनटू द वॉल ऑफ द यूटरस। एंड वहां पे कौन सी वॉल हमने बनाई है? दैट इज द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम। सो एंडोमेट्रियम पे अगर इम्प्लांटेशन होती है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट सेल्स आते हैं, दैट इज नोन एज द ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स। अब हमने एक पढ़ा है कि अगर हमको एंडोमेट्रियम को शेड होने से बचाना है, मेंटेन करके अगर रखना है,
कौन सा हार्मोन हमें चाहिए? दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन कौन सीक्रेट कर रहा है? कॉर्पस लूटियम। सो क्या कॉर्पस लूटियम को बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी है क्या? यस। सो ये जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होते हैं, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज नोन एज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? दैट इज HCG। सो ये जो HCG है, ये किसको बचाएगा? इट मेंटेन्स कॉर्पस लूटियम। एंड अगर कॉर्पस लूटियम अगर बचा रहेगा, देयर विल बी गुड अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड इट विल मेंटेन द लाइनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। सो अगर प्रेगनेंसी होती है, क्या प्रेगनेंसी के बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल होनी चाहिए क्या? द आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज यहाँ पे कॉर्पस लूटियम मेंटेन्ड है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज्ड है। सो अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर फीमेल में इंक्रीज अगर है, प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? टू मेंटेन द लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्या ये कॉर्पस लूटियम आगे के स्ट्रक्चर में डिग्रेड हो जाता है क्या? यस। एंड दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉर्पस एल्बिकेंस। अब कॉर्पस एल्बिकेंस क्या ये कोई हार्मोन रिलीज कर सकता है क्या? नहीं। सो देयर विल बी डिक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। एंड जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होता है, progesterone is the maintaining, it is the maintenance hormone for the endometrium. So प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर कम हो जाता है, कोई ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने वाला हार्मोन ही नहीं है, सो अगेन दिस एंडोमेट्रियम विल स्टार्ट श्रेडिंग। सो आई होप आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का कंसेप्ट एकदम क्लियर कट हो गया हो। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय यूट्यूब चैनल, प्रेस दैट बेल आइकन, like this video and share it with your friends. See you in the next video presentation. Till then, see ya, bye bye, have a good day.